Today we have a very distinguished gentleman to talk about this with us, and with a lot of pleasure, I introduce him. He is Mr. Kapil Jain. He is actually a computer science graduate from an NIT, and he did his MBA Finance from IIM Indore. And presently, he runs his own financial institution in Mumbai in the name of Enrichwise. And he has a big team of more than 25 people now working with different things. So it's with a lot of pleasure and a lot of respect, I invite and welcome Mr. Kapil Jain, who is going to take the session forward. He also worked for 10 years in United States, but now he's back. His father's business of financial consultancy was already there. He took it over from him and really expanded it very well. Before I take on straight away give the dais to him, I request Mr. Uday Mukherjee, because he has been associated with him, to say a few words about him. Thank you, Prashant. Good morning to all, and my word of welcome to Mr. Kapil Jain. I know Kapil since I think 2019. I think January 2019 we got introduced, and I only regret why I have not met him earlier. Anyhow, so he is a very pleasant personality, and outside the finance thing, I would like to say he's a very pleasant personality, and he explains things very nicely and simply. So people like us understands his language very well, because he makes it very simple for non-finance people. So, I'm sure that Mr. Kapil would definitely throw some light on what we should do. So, without taking much of time, I once again welcome Kapil, and over to Prashant and Kapil. Yeah, thank you, sir. And Kapil, you can share the screen now. You have to just upload. Yeah, and there's the gentleman on the screen. Welcome, and over to you, Kapil. Thank you so much, Prashant. Hi, familiar faces. Good to know. Great. So, till what time I have? I think we have till 11:30, right? Right, we have till 11:30. Okay. So first of all, thank you, gentlemen, Prashant ji and Uday. I think I know both of them. Prashant I think I know him for more than a decade, I think. And Uday sir, I know him for I think 2-3 years, as he mentioned. And I think Messer has a good, finance. Prashant himself is a very wise investor. And so you have a person within your organization whom you can always, he's been a long-term investor, and he is himself a wise investor. So it is good in your team, Messers. I was reading about Messer on the web, and congratulations you folks. I think you guys are one of the top in India in an area which probably I do not understand a lot, but it appears too complex, So I'm sure you guys are doing a great job at it. So congratulations and keep going. Okay. And before that, I would like you all to grab a cup of coffee. Okay. And enjoy this ride. I will be talking in English and Hindi. As Prashant said, basically, I like to keep things very light. Also, grab a notebook and pencil and try to make just some important points in one page. Don't write too many things. I'll share this presentation with you. It has some data points. It will be good for all of you. Okay, so grab a notebook and a pencil, and some important points which I will share. Please make a note. I think it will be useful. So just to give a brief about me and my father. My father is 76. He's a CA, and he started all of this. And as Prashant said, I was in US earlier, and after coming back, I've been an investor and an advisor myself over the last 22 years in the stock markets. So I'm an investor. Today, the idea is for long-term wealth generation. And so I will begin with some common mistakes जो लोग करते हैं. So please make a note of that. And then we will go on to सोच समझ कर invest कर में 7 powerful ideas which I would like to share, which is applicable to normal salaried people, which they can put to practical use using very simple vehicles. So we will try to keep it within 30 minutes, 35 minutes, and then I will open it up for Prashant for Q&A. I think that's the plan. And then we'll try to wrap it up by 11:30. Yeah, okay. That's fair. So to begin with ना मैं कुछ पहले common mistakes share करना चाहता हूँ जो अक्सर लोग salaried वाले करते हैं. सबसे पहली common mistake है insurance. Okay. तो insurance में हम सबको कल की risk cover करना चाहिए. So everyone on this platform should have a term insurance. If you are having ULIP, Money Back Endowment, LIC की जीवन, सुरभि, सरल, आनंद, कोमल श्री, कोमल जीवन, etc., then you need to relook at your insurance policies. This is we have more than 5,000 clients for whom we do taxation, and this is one of the common mistakes which I've seen. लोगों के पास अपना term plan नहीं होता है. They have a house, they have liabilities, but they don't have a term plan to cover their family. So if your whatever is your income, जैसे आपकी income मान लो 30 lakhs है या 40 lakhs है, उसका 30% निकाल दीजिए.
टैक्सेशन गवर्नमेंट को देना पड़ता है, रिमेनिंग जो है नेट है उसका एटलीस्ट 5x का टर्म प्लान होना चाहिए। मतलब आपकी अगर 30 लाख इनकम है तो आप 30% हटा दो, 20 लाख का 5 टाइम्स अगर मैं करूं तो इट कम्स टू अबाउट 5x, 0.5 टाइम्स या 5x 1 CR का आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 1 CR का टर्म प्लान होना चाहिए। सो एवरीवन शुड हैव अ टर्म प्लान। इफ यू आर हैविंग डिजर्व योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक, बट नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। And relook at your ULIP money back endowment policies. They are never have combo products. So that is number one. The second common mistake which people make in the stock market is they treat it like a video game. सुबह 9:15 से 3:30 बजे and every day they want to have a look at the portfolio. So statistics and probability के हिसाब से things are stacked up against you. इसका मतलब गेम जीतना मुश्किल है। हम सब चाहते हैं कि हम पैसे ज्यादा और जल्दी बनाएं। Everyone of us wants, including me, Junjunwala, Warren Buffett, Prashant, Uday, and everyone on this panel, everyone wants to make money quick. Who doesn't want? But the probability of doing quick is very less. It's hardly 0.1, yeah, it's hardly 1%, lesser than 1%. So that means people who think that they can trade the market, they are stacked up against probability, and probability is reality. So F&O और ट्रेडिंग को अवॉइड करें। सेकंड, एक कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि कितना कॉर्पस हमको एक्चुअली बनाना चाहिए, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि एटलीस्ट you should try to aim for 2 to 3 times your CTC of corpus before you want to do something spectacular या some extravaganza. So जब तक हम 2 to 3 times नहीं पहुंचते हैं, कुछ बेसिक चीजें करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। And EMI you should not go more than 40% of your salary net income. तो अगर आपकी मान लो नेट इनकम 20 लाख मैंने बताई, तो उसका 40% मान लो साल का 8 लाख आ रहा है, तो 8 लाख का 10x कर लो तो 80 लाख के ऊपर आपका होम लोन नहीं होना चाहिए। मतलब 8 लाख से ज्यादा EMI नहीं देना है साल का। ओके, सो लोग नहीं तो ले लेते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस कैन गेट अ लोन, वेरी हाई लोन, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर प्रॉब्ली अर्निंग वेल। तो बैंकर को लोन देने में कोई परेशानी नहीं है, बट यू डोंट वांट टू हर्ट योर फाइनेंशियल्स बाय टेकिंग अ वेरी बिग लोन, सो यू वांट टू कीप द लोन टू 40% ऑफ योर EMI. Okay, so these are some of the common things which we have observed. F&O, try to avoid derivatives, leverage trading in the market. Okay, with that I would like to start my presentation, and I will share one screen. Prashant, are you able to see this? Yes. Okay. Yeah. So basically the agenda is very simple. सोच समझ कर invest कर, and 7 ideas I'll be presenting as to how one can use practical use. You can make notes of it. I'll be sharing this presentation with Prashant and he can share it further. So पहले हम लोग ये देखेंगे कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर क्यों नहीं पाते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। जैसे हम सब समझते हैं कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा, हम सब जानते हैं अच्छी चीज, बट कर क्यों नहीं पाते हैं। सो विल पुट इट टू नंबर्स एंड सी कि क्यों अक्सर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, एंड व्हाट आर द की थिंग्स व्हिच आर सो बिफोर दैट all of us are working for money, matlab we are trading our time for money, correct? And so we are looking for something known as, even if you are not aware, but subconsciously you are actually searching for independence, and in money terms it's basically financial independence. तो true independence आपकी तभी आएगी जब आप financially independent हो। और financially independent मतलब क्या? financially independent मतलब क्या है? financially independent मतलब ये है कि आप you are working for Messrs or for any company or for Enrichwise or for TCS or for Tata's or for any company, big company of the world, but it's not only for money. Money is not the sole criteria or the only criteria. Okay, it is a criteria but not the most important criteria. तो जब आप उस position में पहुंच जाते हो, that is known as true financial independence. Whether you are working or not, the monetary aspect doesn't play a key role, and that becomes your financial. That is when you can claim to be financially independent. तो अगर हम अपने लिए उतारें ये बात, तो हमारी अगर सैलरी रिप्लेस हो जाए, मतलब कुछ ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स है जो हमारी सैलरी को रिप्लेस कर दे, हमारी नेट इनकम को, और फिर भी हम काम कर रहे हैं, सो दैट इज व्हेन यू रीच फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ही तो जिंदगी मिली है, सो वी वांट टू एंजॉय इट आल्सो, सो वी शुड एम फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। Whether you reach it at 55, 60, if you do not aim at an earlier age, you will never reach it, because मैंने देखा है कि अक्सर लोग जैसे लेटर एज में भी डिपेंडेंट रहते हैं, उनके काफी असेट्स में खर्चे हो जाते हैं, बाय द टाइम दे रीच 65, 70 आल्सो दे आर स्टिल डिपेंडेंट, मतलब दे आर नॉट ट्रूली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उनको हमेशा एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, तो हमको उसमें नहीं जाना है। ऑलराइट, तो वी विल टॉक अबाउट दैट, बट इज इट वेरी इजी? इट्स नॉट इजी, एंड द रीजन इट्स नॉट इजी इज बिकॉज ऑफ दिस। नंबर 1 इज पीपल लैक पेशेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की पेशेंस नहीं है, एंड पेशेंस क्यों नहीं है? लेट मी गिव एन एग्जांपल एंड आई वांट टू हियर सम आंसर्स ऑन दिस। जैसे मान लो अगर हमको वर्ल्ड ट्रैवल करना है और हम हर दिन 100 मीटर्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और हर दिन आप डबल करते हो,
ठीक है, दूसरे दिन 200 मीटर, तीसरे दिन 400 मीटर, चौथे दिन 800 मीटर, तो हमको कितना समय लगेगा अर्थ पार करने में? अर्थ का सर्कमफ्रेंस करीब 40,000 किलोमीटर है। तो प्रशांत जी कितना टाइम लगेगा? 10 साल, 20 जैसे साल। पहले दिन 100 मीटर, दूसरे दिन 200, तीसरे दिन 400, चौथे दिन 800, 40,000 किलोमीटर जाना है। कुछ महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 25-30 साल लग जाएंगे। एंड जनक इज अ रनर, वो बता सकता है, उसका तो हो भी क्या होगा शायद अभी तक। So basically, let me move ahead. You'll be surprised. Yeah, it is very interesting actually. People should attempt, I think. Okay. Basically आपको है ना 19 दिन लगेंगे। ठीक है, पहला तो सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि सिर्फ 19 दिन लगेंगे, क्योंकि अपन 6 दिन में 3 किलोमीटर ही पहुंचे थे। ठीक है, बट 19 दिन में 39,000 कवर हो रहा है, लेस देन 20 डेज, पूरा अर्थ का सर्कमफ्रेंस। अगर हमको ये मौका मिलता करने का, ऐसा हम कर पाते अगर, ठीक है। बट इससे ज्यादा सरप्राइजिंग पार्ट मैं बताता हूँ आगे। अगर आप 10 दिन बाद रुके तो कितना पहुंचोगे? 19 दिन में 30,000 पहुंच गए, 40,000, तो 10 दिन में कितना पहुंचे? नाउ द अदर सरप्राइजिंग पार्ट, सिर्फ 77। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं या शुरुआत के दिनों में, राइट, हमारा कॉर्पस ज्यादा नहीं बनता है, बट लास्ट के 5 दिनों में वो उसने मतलब 25,000 किलोमीटर ट्रैवल हो गए। तो अगर जो 10 दिन में रुक गया वो सिर्फ 70 किलोमीटर ही पहुंचा, मगर जो 19 दिन चला पूरी अर्थ कवर कर गया। ओके, एंड दिस स्लाइड, आई थिंक इफ यू कैन टेक एन इमेज, टेक इट, आई विल शेयर इट। ये बहुत ही पावरफुल है, एंड बेस्ड ऑन दिस हम आगे की बात करेंगे। अब जैसे कंपाउंडिंग टेक्स टाइम, ओके, बट उसकी कीमत समझिए आप। जैसे मान लो आप 10,000 रुपए का एसआईपी करते हो, एक सिंपल एसआईपी, सभी लोग कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे, बट इन्वेस्ट करते हो 12% पे, जो कि सेंसेक्स का रिटर्न 14% आया है। तो 5 साल में हमने 6 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 2 लाख का गेन हुआ, टोटल 8 लाख हो गए हमारे। ठीक है, अगले 5 साल में फिर 6 लाख किया, 8 लाख का गेन हुआ, 22 लाख हो गए हमारे। अब देखिए कमाल की बात, देखिए आप, अगले जो 8 लाख हमने पिछले मतलब 10 साल में किए जमा, मतलब अगले 5 साल में, वो अगले 2.5 साल में जमा हो जाते। देखिए अब अगले 2.5-12.5 साल तक हमने फिर 3 लाख ही किए, बट प्रॉफिट देखिए 10 और 18 लाख, 8 लाख बन गए। यू सी, और मैजिक देखिए आगे 7.5 साल में, अगले 7.5 साल में हमने 9 लाख ही एक्स्ट्रा डाले, 15 और 24, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट 9 लाख ही था, और प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा है, 18 से 65, मतलब 67। एंड द लास्ट 5 years, look at it, almost 1 crore worth of gains on an investment of only 6 lakhs. The last 5 years. Okay, I can't मतलब stress on the fact कि this is a very powerful instrument, compounding, and जो लोग इसको समझ गए, right, they will earn it. जो नहीं समझे वो देते रहेंगे, okay, पैसे, इंटरेस्ट। इट्स वेरी पावरफुल। इसकी एक ही चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, यू हैव टू स्टार्ट, बेटर इज स्टार्ट अर्ली एंड यू हैव टू गो लॉन्ग। ओके, द लेंथ ऑफ द ड्यूरेशन मैटर्स। ओके, सो एवरीवन वांट्स टू मेक, कपिल यार, सवानों मुझे पूछते हैं, कपिल यार कोई तो स्टॉक बता, तुम 20 साल से मार्केट में हो यार, कुछ तो बताओ टिप यार, तुम हमारे मार्केट में हो, कोई तो स्टॉक बताओ जो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। यहाँ पे डबल ट्रिपल की बात ही नहीं हो रही है, इट्स 10x, मतलब इट्स 5x, वी आर नॉट इवन टॉकिंग ऑफ परसेंटेज। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। Kapil, you are able to hear me? Yeah. Yeah, I just like to a small intervention here because a lot of our people who are attending are very young people. They have just started their career, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years down the line. So this is very important for them to get into this art of investing, because at times they feel कि अरे सर अभी तो खर्चा ही पूरा नहीं होता है। So what I was telling him कि खर्चे कभी भी पूरे नहीं होंगे, वो आप चाहे जो भी बन जाओ, आप उदय सर की जगह पे भी आ जाओ, तब भी आप यही बोलोगे कि हमारे खर्चे बहुत हैं सर। So the idea was if these all younger guys, they start investing right now, maybe whatever small, 1,000, 2,000, 5,000 rupees a month, then they can really think, start gaining after they turn out, later on 20-25 years के बाद उनकी लाइफ में जब बहुत सारे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगे, तब उनके पास काफी बेस रहेगा, so they will become little more. So that was your really right good message, and I think Absolutely. all the team members should take that it is not about कुछ slides में ना, I will be stressing on that point कि why need to start early and all. early, right? The sooner you start, the smaller amount you need, the longer it can go, the more volatility it can jellyfy. जैसे अभी ये Yes. ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है कि उदय सर ने उस दिन अटेंड किया होगा, तो बैम्बूज जो होते हैं, चाइनीज बैम्बूज, राइट, ओके, उनकी हाइट होती है 80 फीट, करेक्ट, they have a huge height. सबसे पहले तो एबनॉर्मल बात इनकी है कि 80 फीट के होते हैं, बट सबसे मजेदार बात क्या है इनकी, ये नॉन लीनियर इनकी ग्रोथ है। आपने सीड्स डाला,
और आपने पानी डाला एंड यू नो यू हैव नाउ यू आर नर्चरिंग द प्लांट, तो 6 महीने हो गए तो भी ये सॉइल के अंदर ही रहते हैं। 1 साल हो गया, प्लांट बाहर ही नहीं आता है। 1.5 साल, 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5वें साल के बाद थोड़े से स्प्राउट्स बाहर आते हैं। ओके, एंड उसके बाद 90 डेज में दे ग्रो सब्सटैंशियली बाय 80 फीट, यानी 5 years 3 months, रफली 5 years 90 डेज लगते हैं इसको ग्रो होने में। शुरू के 5 साल 0 एंड 90 डेज में 80 फीट। ओके, दिस इज नॉन लिनियरिटी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला वाला था कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म, दूसरा था नॉन लिनियरिटी। इक्विटी, हम लोग ह्यूमन बींग्स को है ना, हमारे चारों तरफ लीनियर चीजें दिख रही हैं, हमारी एज, हमारी ग्रोइंग बाल्डनेस, या हमारा हेल्थ, हमारे बच्चे ग्रो रहे हैं, एफडी के रिटर्न्स, या हमको लीनियर चीजें दिखती हैं। ओके, मतलब जो लीनियर ग्रोथ है, मतलब बढ़ते रहेंगी या धीरे 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 बढ़ रही हैं। बट इक्विटी मार्केट्स नॉन लीनियर चीज है, और ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपको कि इक्विटी मार्केट्स एफडी जैसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यही एक चीज है जिसकी वजह से लोग इक्विटी मार्केट में ज्यादा लंबा नहीं रह पाते, क्योंकि वो क्या करते हैं, देखते रहते हैं हर बार, अरे यार मेरा थोड़ा गिर गया प्रॉफिट, मतलब स्टॉक मार्केट गिर गया, अभी करेक्शन आ गया, अभी पिछले 3 दिनों में मार्केट गिर रहा है, कोविड आ गया, एंड मोदी इलेक्शंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 2008 का क्रैश एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये देखिए, एक ये दूसरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां पे एक्चुअल फैक्चुअल डेटा है कि अप्रैल 15 से मार्च 20 तक है ना, जिन्होंने एसआईपी किया उनके कुछ रिटर्न ही नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट -6 लाख इन्वेस्ट किया तो देखिए माइनस था, वो 5 लाख हो गया। बिरला फंड, दीज आर ऑल टॉप 100 कंपनीज, मतलब इंडिया के, ओके, म्यूचुअल फंड के थ्रू माइनस आ रहा था। बट एक साल में क्या हुआ, अप्रैल पर, मतलब लास्ट ईयर मार्केट डबल हो गया, नॉन लीनियर रिटर्न, जस्ट लाइक अ बैम्बू। ओके, डबल्ड। एंड देखिए आपका 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 11.5 लाख हो गया। इट गेव अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 13-14% सीएजीआर बैठ गया। अब जो ये डर के मारे यहाँ निकल जाता मान लो, या चौथे साल में वो बैम्बू को पानी देना ही बंद कर देता, तो बैम्बूज आती ही नहीं, या फिर आपका मतलब ये रिजल्ट ही नहीं आता आपको। सो इसके लिए सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन लिनियरिटी के बारे में समझिए। ओके, सो इक्विटी मार्केट्स में करेक्शन हमेशा टेम्पररी होता है, बट ग्रोथ इज परमानेंट, बट यू हैव टू गिव इट टाइम। तो इसलिए आपको वही पैसे इन्वेस्ट करना है इक्विटी मार्केट्स में जो लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं कि आपको 1 साल बाद कोई इमरजेंसी चाहिए, या कार लेना, या आपकी शादी के पैसे जमा कर रहे हो, या फिर आप मान लो घर लेने का प्लान कर रहे हो, कुछ करो, उसको स्टॉक मार्केट में मत डालिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स नियर टर्म में अनसर्टन है, बट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही है। तो लमसम नहीं करना है ताकि हमारा लॉस नहीं हो, और हमको धीरे धीरे करना है, शांति से करना है। ओके, एसआईपी इज वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म टू पार्टिसिपेट फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर जो मार्केट्स करना ज्यादा नहीं समझते हैं। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट्स में भी आपको एसआईपी करना चाहिए। जो टॉप इंडिया की 10-20 कंपनीज हैं, जैसे कि डीमार्ट, एचयूएल, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ये सब अच्छी कंपनी है। एक शेयर मंथली लो, जो यंग लोग हैं यहाँ पे, एक शेयर लो, 1,000 रुपए का सिप करो, लॉन्ग टर्म जाएगा वो, बट उसको लंबा रहने दो, और अपने नियर टर्म रिक्वायरमेंट्स को डेट फंड में रखो, ताकि हम कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है। और ओके, द सेकंड एस्पेक्ट इज कि बिकॉज ऑफ दिस नॉन लिनियरिटी एंड रोलर कोस्टर मूवमेंट ऑफ द मार्केट, लोग घबराते बहुत हैं। तो अगर हम कुछ चीज समझ जाते हैं, जैसे अंधेरे में हम अगर जा रहे हैं, हमको अगर रोड का पता है तो हम लोग घबराते नहीं है, बट अगर एकदम ही नहीं पता तो हम घबराते हैं ना। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी मार्केट रोलर कोस्टर राइड है, क्योंकि वो नियर टर्म इंसानों से ही बना है। इंसान फियर और ग्रिड पे चलते हैं, और इसकी वजह से मार्केट गिरता पड़ता है। ओके, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो बता रहे हैं कि मार्केट कैसे 24% गिरा था। एक बार तो करीब इफ यू सी 2008 में इट वेंट डाउन पे ऑलमोस्ट 40%। ओके, ये सब करेक्शंस हैं जो, बट हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? करेक्शंस हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कपिल बहुत जानता है। मैं फेयरली बताना चाहता हूँ, जितने लोग इस पैनल पे हैं, मैं एट पार हूं आप लोगों के साथ इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन की मार्केट में अगले 1-2 साल में क्या होने वाला है। या मैं बोलूंगा ऊपर, आप बोलोगे नीचे, कोई भी सही गलत हो सकता है। इट्स इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट इन द नियर टर्म, कुछ भी हो सकता है। मार्केट इज वेरी काइंड ऑफ, यू कैन से फ्लक्चुएट्स ऑन न्यूज इन द नियर टर्म, एंड देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। तो जैसे कब मार्केट करेक्ट होगा, अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, यार कितना करेक्ट होगा, कितनी देर लगेगी। मेरे पास आंसर नहीं है, बट एक चीज श्योर है, ये चीज श्योर है, क्योंकि मैंने पिछले 20 साल में देखा है, ये कभी 2-3 साल लगते हैं, कभी 3-4 साल लगते हैं, मगर ग्रोथ फिर से आ ही जाती है। तो यदि हमारे मतलब इन्वेस्टमेंट्स, हमने कोई लमसम नहीं, कोई गलती नहीं कर दी है, कोई टाइम नहीं कर दिया, कोई आड़ा टेढ़ा मतलब कोई गड़बड़ स्टॉक नहीं ले लिया हमारे साथ, जैसे कि सुजलॉन, यस बैंक। अच्छा, अक्सर लोग है ना मेरे से ये भी पूछते हैं, कपिल कोई पेनी वाला स्टॉक बताया, 10 रुपए वाला, 19 रुपए वाला, 20 रुपए वाला। आप देखोगे अक्सर जिनका डीमैट है उनके पास यस बैंक पड़ा होगा, वोडाफोन पड़ा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ना ऐसे छक्के मारे धोनी जैसे कि बस यस बैंक 9 रुपए मिले और वो 9,000 हो जाए। सब होने वाला हो सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी है लॉटरी विनिंग जैसी, मतलब बाजू जाके आप लॉटरी लो और लॉटरी जीत गए। तो क्यों गेम खेलना है? उससे जो राहुल द्रविड़ बनो और धीरे धीरे चलो आराम से, शांति से। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स है जहां पे अक्सर मार्केट गिरा था। 2001 में गिरा था। सेंसेक्स देखिए 4,000 था, आज सेंसेक्स करीब 60,000 के आसपास है, 58,000।
नियर टर्म में अगर मैं जाऊं 2010 में तो 18,000 था जब मार्केट गिरा था बहुत, यू नो ये सॉरी 2008 में 21,000 से 8,000 आया था मार्केट्स, एंड उसके बाद सेंसेक्स इंप्रूव हो गया काफी, एंड देन राइट नाउ वी आर एट ऑलमोस्ट 50,000। क्या मार्केट आगे बढ़ते ही रहेगा? ऑब्वियसली नॉट, मार्केट तो गिरेगा, उसका काम है गिरना, गिरना हेल्दी है मार्केट के लिए। ओके, इट्स गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, इनफैक्ट मार्केट गिरता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और अच्छा है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए प्रॉब्लम है, जो लेवरेज कर रहा है, जो एफएनओ कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, जिसने अगर पोजीशन ले लिया हो, वो अभी मार्केट 2000 पॉइंट से गिर रहा है तो वो गायब हो रहा है, उसके पैसे डूब रहे हैं। और एक बात सब लोग याद रखना, जो कॉमन मिस्टेक है, ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, अगर आप 50% से माइनस होते हो तो सिर्फ 50% ही नहीं लगते फिर से वापस आने में 100 रुपए पे। अगर 100 रुपए से 50 पे आए तो 50 का 50% 75 होता है। दैट मीन्स डबल द टाइम यू नीड टू वर्क हार्ड टू कम बैक टू 100। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को नीचे मत जाने दो, इसलिए ट्रेडिंग मत करो, इसलिए लॉन्ग टर्म जाओ और धीरे धीरे करो इन्वेस्ट। और ये सबसे बढ़िया कहानी है जो अक्सर मैं लोगों को सुनाता हूं कि तीसरा सबसे मिस्टेक करते हैं लोग, डीले। अरे यार अभी छोड़ो यार, कल से अपन जल्दी उठेंगे, कल से वॉक पे जाएंगे, कल से अपन जिम करेंगे, कल से अपन हेल्दी फूड खाएंगे, कल से इन्वेस्ट करेंगे। तो एक नेपोलियन की कहानी है जो आप लोग अच्छे से सुन लो। नेपोलियन वाज one of the famous kings, emperors of the world, out to rule the world, यूरोपियन किंग। एंड वो वेलिंगटन एक छोटी सी प्रोविंस है जहां पहुंचा और उसको अटैक करना था प्रोविंस को, रात हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि भाई आराम करते हैं, उसके सोल्जर्स को बोला आराम करते हैं और कल सुबह बिफोर सनराइज हम अटैक कर जाएंगे। तो रात में बारिश हो गई तो थोड़ा माहौल कीचड़ वगैरह हो गया, तो दे डिसाइडेड टू पोस्टपोन द अटैक बाय कपल ऑफ आवर्स, तो धूप आ जाएगी, थोड़ा सूख जाएगा, तब अटैक करते हैं। तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से क्या हुआ कि प्रशिया के जो उनका नेबर था, प्रशिया के सोल्जर्स उसको वेलिंगटन को हेल्प करने आ गए और उन दोनों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। और नेपोलियन की वो आखिरी वॉर थी, मतलब वो वर्ल्ड जीतना चला था जहां पे उसकी गाड़ी आके रुक गई वेलिंगटन में। और वेलिंगटन में क्यों रुकी? क्योंकि बंदे ने प्रोक्रेस्टिनेट किया। अगर वो पहले कर देता अंधेरे में तो वो जीत जाता। सो बिवेयर ऑफ द डेविल प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। सो दीज आर द थ्री थिंग्स, मेन थिंग्स। हैव पेशेंस, कंपाउंडिंग टेक्स टाइम, नॉन-लीनियर रिटर्न्स, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट एंड अंडरस्टैंड दैट मार्केट्स आर वोलेटाइल। अब मैं आपको 7 आइडियाज बता रहा हूं और फिर उसके बाद ना विल इन 15 मिनट्स आई विल टॉक अबाउट दिस एंड देन वी कैन ओपन अप फॉर Q&A। जो सिप के आइडियाज आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो आपके पर्सनल लाइफ में, और क्या उसका पावर है इंक्लूडिंग नंबर्स। ओके, सबसे पहला है कि आपका पेंशन प्लान। अभी हम सब प्राइवेट जॉब में, तो गवर्नमेंट तो अपना ख्याल रखने वाली नहीं है ज्यादा, करेक्ट, बट हम गवर्नमेंट को टैक्सेस तो देने ही है। तो उसमें कुछ नहीं है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एक कॉमन प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है। तो एक्सेप्ट कर लो कि टैक्सेशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड एंड नो गवर्नमेंट इज गोइंग टू लीव यू। सो द ओनली थिंग यू कैन डू इज कि उसको एक्सेप्ट कर लो और रो मत उस पर। अपना टॉप लाइन बढ़ाओ, सैलरीज बढ़ाओ और अपना टैक्सेस ज्यादा दो और नेट इनकम ज्यादा करो। ओके, दैट इज वन। बट अदर देन दैट आपका खुद का पेंशन प्लान कैसे सेटअप कर सकते हो? तो आप जल्दी से SIP मतलब एक इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, कॉर्पस बनाइए और एंड में विड्रॉल होता है कॉन्सेप्ट, SWP करिए। ये सिंपल एक एग्जांपल है जो मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। जैसे अगर 28 ईयर्स का कोई है, जैसे यंग लोग हैं, आप 10,000 करते हो या 5,000 भी करते हो और उसको एक चलाते हो ओवर पीरियड ऑफ टिल 55, तो आपका कॉर्पस 2 CR तक पहुंच जाएगा। ओके, 2 CR पहुंचने के बाद हमको उसमें से विड्रॉ करना है, SWP चलाना है, हमारे पेंशन प्लान बनाना है मंथली। तो अगर आप विड्रॉ करोगे तो आप मंथली 1 लाख विड्रॉ कर सकते हो और वो फंड ऐसे ही रहेगा, मतलब कॉर्पस करीब 12 लाख से ग्रो होगा और वो यू कैन विड्रॉ अबाउट 1 lakh from that corpus. Okay, so this is one mechanism which I am setting it up for a lot of people who are in their early 30s या late 20s to begin this process so that they can set up their pension. Okay, मगर अगर आप ये डिले करते हो तो उतना कॉर्पस कम बनेगा। ऑब्वियसली डिले का मैंने पहले भी बता दिया, बिकॉज ऑफ डिले में द प्रॉब्लम इज आपका कॉर्पस कम पहुंचता है। बट अगेन रिमेंबर, डिले इज जस्ट अ नंबर। ओके, आपकी कोई भी एज हो, there is no other way to, you need to start. Even if you're delayed, I mean, it doesn't make sense to do not start just because delay ho gaya main yaar. So even today is what yesterday was for some people. So basically you need to start. But delay का ये cost बता रहा हूँ मैं कि अगर वो थोड़ा जैसे 28 की जगह 29 करेगा, 29 की जगह 30, 30 की जगह 31, 31 की जगह 32, तो उसका देखिए कॉर्पस पहुंचेगा 2 की जगह लास्ट में 1.3 CR। एंड सो उतना ज्यादा आपको करना पड़ेगा, उतना मंथली पेंशन कम आएगा। जैसे अगर 28 में शुरू करते हैं तो 1 लाख की पेंशन अपन निकाल सकते हैं अपने लॉजिक से, बट अगर आप 32 में स्टार्ट करते हो तो 66,000 ही बन रहा है अपना, उतने ही इन्वेस्टमेंट से। तो इट मेक सेंस टू स्टार्ट अर्ली। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट दिस पॉइंट। अगर आपको लगता है कि आप लेट हो, अगर आपके बच्चे यंग है तो उनके नाम से शुरू करो, ठीक है? तो उनके लिए शुरू करो, बिकॉज वो तो यंग ही है अभी भी। जैसे मेरी बेटी अभी है, या मैं जैसे मेरे अभी जो क्लाइंट्स है उनके बच्चे, मैं तो उनके लिए शुरू कर रहा हूँ। और एक्चुअली लास्ट वीक हमने एक मीटिंग सुब्रा सर का जो एक वेबिनार किया था, उसके बाद तो उन्होंने कहा कि अगर बच्चे छोटे 2 साल के 3 साल के, कपिल उनके लिए शुरू करो, बिकॉज
बाय द टाइम देयर इज 18 उनका 1000 रुपीज इक्वल टू 10 to 15,000 ऑफ द 18-year-old. मतलब 1000 रुपए 2 साल वाले का अगर मैं शुरू करता हूँ तो उतना कीमत है उसकी. So get this into your brains and heart that you need to start early. If you have not started for yourself, start for your child. Okay. सब लोगों का मोस्टली लोन होता है, राइट? लोन जिसका नहीं है तो पैट योरसेल्फ ऑन द बैक, ग्रेट. अगर आपका लोन है तो आप उसको कैसे इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं? अगेन ये बढ़िया एग्जांपल है. गेट दिस लॉजिक इनटू योर माइंड. समझिए, पहली बात तो ज्यादा लोन नहीं रखना चाहिए लोगों को. ओके, मैंने जैसे समझाया 40% ऑफ द EMI का आपका लोन होना चाहिए, नंबर 1. चलो मान लो उतना है, जैसे 50 lakhs का लोन है और 25 साल का है, 6.5% 6.7% है, तो करीब आपका टोटल रिपेमेंट 1 crore होगा और 53 lakhs का इंटरेस्ट आएगा. तो 50 लाख का लोन और 53 lakhs का इंटरेस्ट. ठीक है, ये आपका आने वाला है. अभी इसको अगर मैं आपको बोलूं कि कोई लॉजिक अपन लगा सकते हैं क्या कि ये इंटरेस्ट कैसे अपन रिकवर कर लें? कुछ भी अपन आज से शुरू कर सकते हैं क्या कि यार इन 25 सालों में इंटरेस्ट रिकवर कर लें? तो उसका सिंपल लॉजिक है, जो EMI है उसका 20% का आप SIP शुरू कर दो. जैसे कि ये अगर मान लो आपने एक SIP चालू कर दिया 7,000 रुपए का, करीब 20%. ठीक है, EMI 35,000 था अपना, 7,000 का SIP शुरू कर दो, 25 साल चलाओ तो टोटल अपन 21 लाख देंगे. और वो कॉर्पस ग्रो होके टोटल मिला के हम लोग दे देंगे करीब 1.24, क्योंकि 21 और अपन ने EMI दिया. और मगर जो 21 लाख दिया वो लास्ट में होके 1 crore 19 हो जाएगा 25 साल में. अगर आपने कोई चीज 20% ऑफ द आपने अगर 20% ऑफ योर जो EMI है उसका एक पैरेलली SIP शुरू कर दिया, यू नो, तो इट कैन गो टू एन अमाउंट विच विल कवर योर इंटरेस्ट फीस ऑल्सो एंड इट बिकम्स टेक्निकली फ्री. ओके, सो दिस इज अ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया विच पीपल शुड. सो हमेशा क्या होता है, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता था, जब मैं पढ़ाता था मैथ्स वगैरह, तो उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब तक आप नहीं बताओ ना तो बात समझ में नहीं आती. जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, tan थीटा, sin थीटा, बीटा, ओके व्हाटएवर, अभी क्या करना है tan थीटा का यार? जब उनको बताओ कि भाई ये बिल्डिंग में काम आएगा, जब आप इसको उसका एंगल निकालने के लिए कितना डिस्टेंस में क्या है एंड ऑल दैट, तब उनको समझ में आता है अच्छा हाँ कोई. तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यू कैन एक्चुअली, नहीं तो ऐसा ड्रैब सिप करने से क्या है, बट इफ यू कैन लिंक इट टू समथिंग देन यू नो देयर इज जूस आउट ऑफ इट. यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग पीरियडिकली ऑन द लॉन्ग रन. तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर तीसरा किसी का एग्जिस्टिंग लोन है, तो अभी आज की तारीख में जैसे हम टैक्सेशन भी करते हैं, तो टैक्सेशन करते हैं तो आपको पता है कि 2 लाख तक इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है. बहुत सारे लोग आके मुझसे पूछते हैं कि कपिल यार मेरा लोन मेरे पास 10-20 लाख पड़े हैं तो मैं प्रीपे कर दूं क्या? तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई आपका अगर 35 लाख तक का लोन है या 40 लाख तक का, साल का इंटरेस्ट 2 लाख आ रहा है, ठीक है, तो उसको रखो ना. गवर्नमेंट आपका टैब उठा रही है यार, गवर्नमेंट 60,000 आपको बेनिफिट दे रही है तो ले लो ना. ओके, तो अगर आपके 30-40 लाख का लोन है और 2 लाख का इंटरेस्ट है और सैलरीड हो, 30% पे हो, तो लोन रखिए, डोंट प्रीपे द लोन, डैम लोन. ओके, अगर आपका लोन बहुत बड़ा है, 1 करोड़ है, 80 लाख है, 70 लाख है, तो उतना बड़ा लोन नहीं रखना है. मैंने जैसे बताया थोड़ा कम करना है. ओके, एक बार आपका जैसे लोन अमाउंट है और आपको लग रहा है कि आपका EMI 38,000 है और टेन्योर 20 साल है, ठीक है, और मान लो 2 साल हो गए आपका लोन, मान लो 2 साल पहले लिया था आपने और 2 साल हो गए, तो आप क्या कर सकते हो कि टेन्योर थोड़ा बढ़ा दो, EMI थोड़ा कम कर दो और डिफरेंशियल को फिर से आप इन्वेस्ट कर दो. उससे क्या फायदा होगा? अगेन द सेम लॉजिक कि आपका फिर से वो जो इंटरेस्ट जो आप देने वाले हैं ना, इट विल बी नॉक्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आपने अगर 30 इयर्स का लोन रखा है, 30 इयर्स नया लोन कर दिया और बैलेंस 28 इयर्स है, तो जो आप नया उसका सिप चलाएंगे तो इट विल बेसिकली आफ्टर 20 इयर्स जो ओरिजिनल 93 लाख देने वाले थे, इसके बाद क्या होगा कि आपका वेल्थ इतना क्रिएट हो जाएगा कि आप उसका ओरिजिनल टेन्योर में पैसे दे देंगे बट 18 लाख फिर भी बच जाएंगे. मतलब आज आपका 2 साल पुराना लोन है, आपने टेन्योर बढ़ा दिया आज से और सिप चालू कर दिया, और ओरिजिनल टेन्योर के बाद आपके 18 लाख ज्यादा बच जाएंगे अगर आप ये स्ट्रैटेजी लगाते हो तो. ओके, सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट आइडिया विच इज अबाउट एग्जिस्टिंग होम लोन इंटरेस्ट. तो नया होम लोन पे भी आप कर सकते हो, एग्जिस्टिंग पे भी कर सकते हो. ये टॉपअप सिप एक है. फॉर द टॉपअप सिप ना, जैसे मंथली आप अगर जो लोग सेव कर रहे हैं, तो मैं उनको हमेशा अक्सर बोलता हूँ कि यार 10% हर साल बढ़ा दो. आपकी इनकम तो हर साल बढ़ती है, आई एम अज्यूमिंग बढ़ रही है 5%, 10%, तो उतना सिप बढ़ा दीजिए. सिप बढ़ाने से क्या फायदा है? मैं एक्चुअली आई विल लाइक टू शो वन वीडियो. प्रशांत जी, मैं एक वीडियो दिखा सकता हूँ? Yes. If you run from your screen also it will show. Okay, I'll just run this. तो हमको है ना एवरी ईयर क्यों बढ़ाना चाहिए, आप ये वीडियो देख लीजिए, छोटा हमारा समझो जानो. हाँ, बिफोर आई रन दिस वीडियो आई वांट टू शेयर दैट वी हैव अ प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया एंड वी रन अ समझो जानो एपिसोड्स एवरी वीकली, 2-minute वीडियोस टू शेयर सम नगेट्स ऑफ विजडम एंड सो पीपल कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच द वीडियोस. यहाँ पे है जो मैं पर्सनली क्यूरेट करता हूँ. सो आई विल जस्ट शेयर दिस. वन सेकंड, कि टॉपअप सिप की कीमत क्या है. ओके, वन सेकंड. You know that at 99 degrees Celsius, water is hot, very hot. But what happens when you add one more degree to the temperature? At 100 degrees Celsius, water begins to boil and become steam. And a steam is powerful enough to move a trainload of people.
think about it. How can you add 1 degree more to your investment to make it more powerful so that you can create more wealth? The answer is simple. Instead of SIP, start a top-up SIP. With top-up SIP, you can increase your SIP amount every year automatically. You can choose either fixed percentage or fixed amount as a top-up. If you start an SIP of rupees 10,000 per month for next 25 years, you may create a wealth of 2.76 crore rupees. But if you start a top-up SIP with rupees 10,000 per month with rupees 1,000 of annual top-up, you may create the wealth of 4.37 crore rupees. So basically ये top-up SIP is what कि आपकी expenses और income तो हर साल बढ़ी रही है, but आपके expenses भी बढ़ रहे हैं साथ में. So जैसे इनकम आपकी अगर बढ़ रही है every year 10%, so it is advisable to increase your investments by 10%. The deviation in the end result is amazing. It's very huge. So it adds up in the long term again with the effect of compounding. And that example as I've shown in the video, and in this slide is a similar example which I put of a 10K SIP monthly which we do. The fifth idea is basically annual expenses. ओके जैसे हमारे मंथली एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं, स्कूल फीस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग. जैसे मान लो आपकी स्कूल फीस है 1,20,000 की साल की, बच्चों की दिन है. तो अगेन इसका एक सिंपल तरीका है. आपको अगर मैं बोलूं कि अगर आपको मैं 1,20,000 पे डिस्काउंट दिला सकता हूँ 3,000 का, तो एवरीवन वुड लाइक टू हैव इट, राइट? तो कुछ स्कूल्स में होता है कि आप क्वार्टरली देते हो, तो लोग जनरली क्वार्टरली प्रेफर करते हैं कि 32,000 क्वार्टरली देते हैं अपन, यार क्यों उसको साल लास्ट में अपन एक साथ दें. बट उससे अच्छा आप 10,000 रुपए का एक अगर सिंपल SIP चला दो, एक नॉर्मल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड 5% पे, ठीक है, लिक्विड फंड में, तो आपका कॉर्पस बन जाएगा 1,23,000 और आपको सिर्फ एक साल बाद देना 1,20,000 देना है, और 3,000 रुपए का जो है वो आपका डिस्काउंट है, मतलब 3,226 रुपए का. तो नेट आपका पड़ा 1,16,000. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स वेर इन आपके अपकमिंग कोई प्रीमियम्स हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, या वैकेशंस हैं, या फिर जो कॉमन एजुकेशन फीस हैं, उनके लिए एक नॉर्मल SIP इक्विटी में मत चलाओ, क्योंकि इक्विटी मार्केट वोलेटाइल है. बट लिक्विड या डेट फंड में चलाओ. टेक दैट कॉर्पस आउट, बिकॉज वो एग्जिट लोड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. इट्स बेटर देन अ बैंक, बेटर देन एन FD. It is tax efficient, mailable, and utilize it periodically, over a period of long term for these small expenses जो annually होते रहते हैं आपके, and you get a small discount on everything. Okay, so that's the fifth idea. Sixth idea ये है कि जैसे अभी लोग PPF में ELSS में करते हैं, जिनको ATC में करना है, या उसके अलावा भी लोग बोलते हैं कपिल यार PPF में करना है. PPF is a great vehicle. PPF great vehicle. जैसे हमारे दादाजी और हमारे पापा बोलते थे कि PPF एक great product था. PPF एक ग्रेट प्रोडक्ट इतना ग्रेट नहीं है. इट्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट बट इट्स नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज हमारे पिताजी और दादाजी के टाइम पे वो 12% देता था. अब अनफॉर्चुनेटली परसेंटेज 7.4 पे आ गया है. ओके, एंड इन्फ्लेशन पे आ गया है. एंड सो उनके जमाने में इन्फ्लेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी. ऑलराइट, एंड दे वर गेटिंग अ बेटर रिटर्न. वो लोग एक साइकिल से काम चलाते थे, एक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, टेलीफोन बॉक्स जो पूरी सोसाइटी में एक बॉक्स होता था, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पूरी सोसाइटी में जो पूरे नेबर्स देखते थे. आज की तारीख में क्या है कि घर में अगर 4-5 लोग हैं तो 6-7 तो मोबाइल फोन्स हैं, 3-4 कलर टीवीज हैं, 2 कार्स हैं, 2 घर हैं, वेकेशन है, फॉरेन ट्रिप्स हैं, उसके बाद आपके बच्चों का एजुकेशन है. तो ये सब हमारे पिताजी और उनको हमने शायद प्रशांत लोग और हम लोग ने सस्ते में, या शायद उदय सर ने, या जितने भी लोग यहाँ पे जो 45-50 प्लस हैं, उन्होंने अपना एजुकेशन शायद सस्ते में ही निकाला है. बट हमारे बच्चों का एजुकेशन अगर देखेंगे तो 30-40x. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट इज एक्सपोनेंशियली द ग्रोथ हैज हैपेंड. So we should try to improvise the returns and see how we can make up. Why ELSS is a better option than PPF? Okay, ELSS means equity linked saving scheme. इसमें भी ATC का बेनिफिट मिलता है. ये 3 साल लॉक इन होता है. ये भी एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है. अगर मैं पिछले फैक्ट्स देखूं, फैक्ट्स, these are facts, तो लोग बोलते हैं कपिल PPF ट्रिपल E है, मतलब exempt. और जैसे उसमें आपको ATC का बेनिफिट मिलता है, ATC का तो उसमें भी मिलता है. तो अगर बेस्ट ELSS ने आपको 80 लाख दिया था, अगर आप 1.5 लाख हर साल PPF में डालते तो वो 44 लाख होता था. 1.5 लाख अगर हर साल एक सबसे बढ़िया ELSS में डालते तो 80 लाख बनता. वो एवरेज में वर्स्ट में डालते तो 55 लाख बनता. मतलब पिछले 15 साल का सबसे वर्स्ट स्कीम मैंने लिया है, और उसको भी मैंने कंपेयर किया कि वर्स्ट जो सबसे अधिक रिटर्न दिया उसने भी 55 लाख बना के दिया है. What I'm saying is that if you are willing to give time, this is a very good instrument again for your young people who are willing to put in their money. This gets locked in also. This indirectly puts you into the investing mode. So this is the 6th big idea. And 7th, जो कि सबकी प्रॉब्लम, जिनके बच्चे हैं, एजुकेशन क्या है, एंड जिन लिए, क्योंकि एजुकेशन एक्सपेंस इंडिया में सबसे ज्यादा बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन. जैसे अभी आपके बच्चे मान लो, मतलब डॉटर है 2 साल की और उसका हायर एजुकेशन करना है 17 साल बाद, तो 20 लाख का खर्चा है आज, और मैरिज का है मान लो 15 लाख का पकड़ रहा हूँ, तो बहुत मैं रीजनेबल पकड़ रहा हूँ, ठीक है.
तो उसका अगर मैं 17 साल वाला लेता हूँ तो 41 lakhs का एजुकेशन है और मैरिज 46 lakhs है। तो अगर कोई पूछता है कपिल क्या करे यार, तुमने सब बताया, स्टोरी तो अच्छी लग रही है, तो मैं क्या करूँ, कितना सेव करना चाहिए? तो अगर हमको सेव करना है और ये कॉर्पस बनाना है तो देखिए बहुत कम सेविंग में काम हो जाता है। देखिए मैरिज के लिए सिर्फ 3,000 रुपये सेव करना है, 3,500, और एजुकेशन के लिए 8,000, एंड यू कैन लिंक इट टू दिस एंड जस्ट रिव्यू इट पीरियडिकली कि भाई चल रहा है कि नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, एंड ऑल दैट, यू नो। बट ब्रॉडली you can start small and reach those goals of 41 and 46 which appear very big, but you know they can be started off, so you should be aware of your goals. And दूसरी बात है कि even the similar logic applies to your retirement, जो मैंने शुरू में बताया था। रिटायरमेंट के लिए लोगों का एक कंसर्न होता है कि भाई रिटायरमेंट में कितना कॉर्पस होना चाहिए एंड ऑल दैट, और इट डिपेंड्स अ वेरिएबल ऑफ योर एक्सपेंसेस, बट रिटायरमेंट के लिए भी you definitely need to start early. What does all this mean? What मैंने इतना बोल रहा हूँ कि सेव करो, मेरा कहने का मतलब ये है कि इट्स अ होलिस्टिक थिंग, इन्वेस्टमेंट इज अ होलिस्टिक थिंग, ओके। You can't just save, but you should not only spend. Okay, there is a golden formula कि your earnings minus your savings should be your expense. ठीक है, earnings minus savings should be your expense. लोग उल्टा करते हैं, पहले जो earn किया फिर उड़ा दिया, क्रेडिट कार्ड ये वो सब कुछ, और फिर बचा कपिल यार ये इन्वेस्ट करते हैं। तो उल्टा कर लो, लाइफ सुधर जाएगी। But don't be a miser. Invest in experiences. You splurge the money on experiences, memories, and wherever you can create good family time or good, wonderful memories. But take that extra step where you can save a little bit more. Instead of parking money in FDs, park it in debt funds. You save on taxes. You save on availability, liquidity. Okay, don't do something which can create losses for you. Like अगर losses वगैरह हो रहे, avoid losses, go long term, and keep your EMIs under control, EMIs वगैरह, and expect reasonable returns. जैसे Warren Buffett is at 13%. Okay, so even if you make about 11% on the long run, I think it's fair. I mean, it's good. So you should do that. So to summarize, have patience, discipline, and don't delay, don't procrastinate. And these are the 7 things which you can do. Set up your pension plan. You can free up your interest loan, existing home loan. Also, you can create wealth. Top up your SIPs because it's powerful. Take a discount on annual expenses. PPF की जगह ELS कर सकते हो, and SIP for your child's future. So with this, what I would like to do is I'll share this slide with you. It's great actually, and there are 1 or 2 more YouTube videos I'll share with Prashant ji. And I'll take it up for Q&A in case even Q&A उसमें ज़्यादा हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको, जो भी कॉमन अगर क्वेश्चंस आपके। Thank you, Kapil, for a detailed and elaborate, show of the scene to us. I now request all the participants, any question you have. Atulji, you can please ask your question. Started very lately. I mean, I've been investing, but then SIP I started lately. And it is with Axis Bank. Do you propose to move somewhere else, or what do you propose on that? नहीं, तो वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका एग्जिस्टिंग कैसा चल रहा है और आपके नीड्स क्या। हाँ, जैसे मैं 3 चीजें जनरली बताता हूँ अतुल जी, सबको अपने नीड्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आपकी नीड क्या है, आपकी एज क्या है, और आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आपकी कोई भी नीड अगले 2 या 3 साल में है, ये लोग लिख भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरा ही लॉजिक है। अगर आपकी नीड अगले 1-2 साल में, तो वो पैसे इक्विटी में नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी नीड 4-5 साल बाद है, जैसे रिटायरमेंट है या बच्चों का एजुकेशन है, और उसके लिए पैसे जमा करो, तो वो डेट फंड में नहीं होना चाहिए, एफडीज में नहीं होना चाहिए। सो यू नीड टू रिव्यू। अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म करे तो थोड़ा सा हमको एनालाइज करके ये करना चाहिए और रीबैलेंस करना चाहिए मार्केट में, ताकि हम लंबा रह सकें। तो इट डजंट मैटर वेयर यू आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम एक्सिस और विद कपिल और विद एनीवेयर, एज लॉन्ग एज यू आर एक्चुअली मैचिंग द नीड्स टू योर इन्वेस्टमेंट्स इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। So as Prashant said, I will share my email ID in case you wish to share and take my views on it. We can do that. Yeah. Will you share your presentation, because it was very resourceful and knowledgeable? Yeah, Atul sir, don't worry, you'll get this presentation as well. Actually, my investment in LIC, even my pension is also in LIC. How do you suggest, for this one? मतलब नहीं, जैसे मैंने बताया था कि देखो मेरा पहले मैं एक बता दूं ना, डिस्क्लेमर, I am not against anyone. Everyone has a right to earn. Okay. So I am not against LIC agents. They also are doing their hard work and perspiration and earning. But मेरा सिर्फ एक ही तकलीफ है, वो ये है कि भाई अगर किसी को टर्म इंश्योरेंस की नीड है तो उसको टर्म इंश्योरेंस दीजिए आप। Okay. आप ये मत देखो। और क्या बहुत सारे लोगों के ना फैमिली और फ्रेंड्स में LIC एजेंट्स हैं। Yeah. ओके, एंड LIC पॉलिसी और आपकी 4-5 साल के ऊपर है, और आपके अगर बाकी बच्चे बड़े हैं और लोन वगैरह है, तो यू नीड टू रिव्यू वेदर वो सरेंडर करना है कि उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, चैनलाइज करना है। देखो किसी भी वक्त अगर हम डायरेक्शन चेंज कर लें तो हमारे डेस्टिनेशन जल्दी पहुंचेंगे।
Yeah, So because most of the right? LIC I invested in early, say I 96, no, I would say that around 99 and 2003. It was started maturing in 2023 onwards. The terms or whatever LIC period, whatever you call it. So I was just thinking, lot of more with 6, 7, 8 numbers of LIC scheme. So हाँ, नहीं तो you should streamline it. You should streamline it. इसमें और एक चीज है कि insurance के is one of the most important piece of your financial planning. Term insurance is the only insurance you need. बाकी सारे इंश्योरेंस बेकार हैं. सर उठा के जियो और ये सारे कोमल जीवन श्री, आनंद जीवन, सुरभि सरल, ये सब बेकार है. ओके सर अभी रियलाइज हो रहा है सर हमें अभी आफ्टर 15-16 years we realizing this one now sir. That's the reason. इसलिए जो यंगस्टर्स हैं उनको अभी बोल देता हूँ. और दूसरी बात मैं सबको बोलना चाहता हूँ जो 40s में भी हैं, अगर 45 में, चिंता मत करो. टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल आया था 1945 में हम सब इमॉर्टल हो जाएंगे. तो आप भी 100 साल तक जाने वाले हो सब लोग. तो आपके पास अभी भी टाइम है. यू कैन स्टिल स्टार्ट अर्ली. अच्छा, दूसरी बात यह है कि टर्म इंश्योरेंस एज 60 तक ही लेना है. ठीक है, ज्यादा तक नहीं लेना है, क्योंकि 60 तक अगर मैं जिंदा हूं तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट्स बना लूंगा. उसके बाद 80 तक किसी को आपके पैसे नहीं चाहिए इंश्योरेंस के. बच्चे बड़े हो चुके हैं. ठीक है. Okay. When you typically go to ICICI Bank or HDFC Bank or Axis Bank, okay, and you tell them that I have to take a policy wherein it is in exempt mode. Okay, so they will suggest you something like a wealth builder. Okay, you pay the premium for 5-6 years, and then later on the money will keep on growing, and every quarterly you change the profile, and when you get the money back, it is exempted. Okay, correct. But typically what I have seen, they try to sell you the policy where the people, the relationship managers get more bonus, or they get more incentive in that. तो उत्कर्ष आपके एज क्या है? Same as Prashant. हाँ, तो अभी आपको देखो, ये उत्कर्ष के एग्जांपल से सब लोग समझ जाओ जो मैं बता रहा हूँ कि यू शुड नो व्हाट नॉट टू डू इन लाइफ. जो मैं जनरली बच्चों को जब पढ़ाता था तो उनको बोलता था कि क्या क्या नहीं बनना है. बहुत सारे आते हैं मेरे पास बच्चे कि क्या बनूं मैं बोलता हूँ क्या नहीं बनना है पहले बताओ. तो क्लैरिटी आ जाती है. तो आपको भी लाइफ में क्लियर होना चाहिए क्या क्या नहीं करना है. तो इंश्योरेंस, ट्रेडिंग, ये सब नहीं करना है. ये यूलिप, मनी बैक, एंडोमेंट, ये सब पॉलिसीज नहीं करना है, एक्सपेंसिव है. ओके, जैसे अभी उत्कर्ष आपने ये, और जब आपको पता चल गया ना, जैसे हमको पता चलता है कि मुझे अगर स्किन डिजीज है तो कट इट एंड थ्रो इट आउट. डोंट लिंगर विद इट नाउ. अब जैसे उत्कर्ष आपको पता चल गया कि प्रॉब्लमेटिक है और 5 साल हो चुके हैं, जस्ट नॉक इट ऑफ एंड कट इट आउट, सरेंडर कर दो. उत्कर्ष वो है ना, सी म्यूचुअल फंड इज फॉर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इज फॉर इन्वेस्टमेंट, पीपीएफ इज फॉर इन्वेस्टमेंट, पीएफ, सुपर एनुटी, ग्रेजुएशन, सेविंग्स, ये सब इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस नहीं है. और इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस का कोमोबिलिटी, मोर्टेलिटी, आप 100 रुपए दे रहे हो तो 30 रुपए तो उसमें आपके मोर्टेलिटी के लिए जा रहे हैं, और जबकि मिलने वाला कुछ नहीं है. तो इट डजंट मेक सेंस. We have Rohit and Rishikesh. So Rohit, can you please ask your question? I'm going to meet Mr. Kapil very soon, first of all. And second, sir, my question was regarding that you said that it is always better to invest in debt funds rather than going for FDs. But sir, in debt funds, they are also taxable. So how much more benefit one can get by transferring money from FDs to debt funds? देखो, डेट फंड्स अगर लोगों को नहीं पता है तो दुनिया में 2 ही चीज होती है, इक्विटी और डेट. डेट मतलब हम किसी को उधार देते हैं और हमको इंटरेस्ट मिलता है, और इक्विटी मतलब हम किसी पे पैसे लगाते हैं और वो हमको प्रॉफिट या लॉस कराता है. ये 1000 साल पुरानी कहानी है और आगे भी रहेगी. तो अलग अलग प्रकार के डेट है. हम बैंक को भी जब एफडी बनाते हैं तो डेट है, क्वार्टरली टैक्स होता है. आप पैसे निकालो या मत निकालो. और डेट फंड्स में क्या एडवांटेज है? 3-4 एडवांटेज, जिसकी वजह से सारे आपकी जो कंपनीज है ना, उसके करंट एसेट्स देखेंगे तो वो डेट फंड में पैसे रखते हैं. मेसर के भी बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो शायद होंगे, या बड़ी बड़ी कंपनीज का बैलेंस शीट देखेंगे तो उनके लिक्विड फंड्स या डेट फंड में पैसे होते हैं, क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट होते हैं, लिक्विड मेलेबल, HNIs यूज करते हैं. तो डेट फंड में क्या होता है, जब तक आपने पैसे रखे टैक्स नहीं लगता है. जितने पैसे रखे निकालोगे उतने भी प्रोरेटेड टैक्स लगता है, और 3 साल बाद वो लॉन्ग टर्म हो जाता है तो वो टैक्स एफिशिएंट हो जाता है. इसका मतलब इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है, जैसे घर को मिलता है. समझ गए? Okay. So it is beneficial from that angle. So it makes sense to park money in liquid ultra short debt according to your near term requirements. Okay, but sir, as you said, FD should be avoided. FDs technically should be avoided for those who are in 30%. क्यों यार 5% पे आप 30% और देना चाहते हो? ऐसे ही तो रो रहे हैं सब लोग यार, टैक्स दे देंगे तो और टैक्स देना है तो रखो. Right. Thank you, sir. Yeah. Hello, Kapil sir. Hello, Prashant sir. Yeah. Hello. I am Rishikesh. I am having all my savings with LIC and NSC. आपकी एज क्या है? My age is 34. आप यंग हो बहुत. जस्ट डू अ कोर्स करेक्शन एंड आपको हमारे से प्रशांत जी के ऊपर करीब, मेरा प्रशांत जी का तो पता नहीं, मेरे से 13 साल छोटे हो, 13 साल छोटे हो, तो आपको मेरे से तो बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो जस्ट डू इट. मैं आपकी जगह होता तो आई वुड हैव डन इट. सो जस्ट डू इट. जस्ट रिमूव द LICs, टेक अ गुड टर्म प्लान फॉर योर फैमिली इफ यू आर मैरिड. इफ you are married, take a term plan and just start in 2 things. Open a DMAT and open MF and start SIPs and good stocks and start SIPs and just start. That's it. Sir, can you or your team help me out for doing this? Rishikesh,
if you are asking Kapil, can you help me with SIP and building one fund? Yeah, it is like asking Messer whether you can supply a plasma cutting machine and an oxy-fuel cutting exactly. machine. तो वही अगर मुझे he's into this business. oxy-fuel का मशीन चाहिए और मैं बोलूंगा प्रशांत जी आप दे सकते हो क्या, तो अरे यार. Okay. So you Thank can you. directly connect. I am there to help you. Don't worry. Your investment will not be known to me. He is very professional. Not worry Actually, about there are that. two reasons for that. There are two reasons for that. There are two reasons. One is we are a CA firm headed by my father. He's a CA. So by regulatory, we are bound by regulatory act. And secondly, we are a private limited company, also SEBI registered. So it is by regulation that we are not supposed to disclose one's portfolio to another. It's that way. So you is from Arun, my dear friend from Delhi. Arun, please post your question. Kapil ji, good morning. My question is SIP. Whenever I look at आप SIP खोलें तो 400-500 तरह के अलग-अलग फंड दिखाई देते हैं, तो वो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. इवन इफ यू ओपन से ICICI, उसमें आपको 40-50 तरह के दिख जाएंगे. तो आई एम ऑलवेज कंफ्यूज कि ये क्या है और किस में पैसा लगाना चाहिए. नहीं देखिए, मैं बोल रहा था कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी-कभी कि इतने 500-600 जितने हैं और कितने नए NFOs भी आते रहते हैं. मेरा कहने का मतलब है कीप थिंग्स वेरी सिंपल. जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जब तक कि आप 2 to 3 टाइम्स और CTC नहीं पहुंच रहे कॉर्पस, जिसको मैं कहता हूँ फाउंडेशनल पोर्टफोलियो, जैसे बिल्डिंग बनती है तो कोर प्लिंथ वाला पोर्टफोलियो, जब तक ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, ट्राई टू स्टिक टू सम गुड लार्ज कैप फंड्स, 2-3 गुड मिड कैप स्मॉल कैप एंड थिंग्स लाइक दैट, गुड क्वालिटी स्टॉक्स, ज्यादा रिटर्न्स नहीं चेस कर रहे हैं और एक सिंपल सिप्स चला रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं. नियर टर्म वाले पैसे डेट फंड में रखो, ज्यादा मत देखो कि ये अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि एवरी क्वार्टर समवन और द अदर विल बी डूइंग वेल एंड यू कैन चेस द बेस्ट गाय इन टाउन. वी जस्ट हैव टू एंश्योर कि हमारा लॉसेस में ज्यादा नहीं जाए एंड वी आर अबव एवरेज. थिंक ऑफ राहुल द्रविड़. यू नो, जब टीम में राहुल द्रविड़ मैदान में आता है ना, तो अपन ये नहीं बोल सकते यार तो सहवाग से स्लो खेल रहा है यार. अरे बॉस, राहुल द्रविड़ खड़ा है तो बाकी 21 प्लेयर परेशान है. जो मतलब बाकी के फील्डर्स को पता है क्या करने वाला है, बैट्समैन को पता है क्या करने वाला है, सब लोग श्योर है क्या करने वाला है. ही इज अ कोर बैट्समैन ऑफ द टीम. ही इज स्लो बट ही इज स्टडी. So आपको भी अपना कोर पोर्टफोलियो ऐसे ही बनाना है, स्लो एंड स्टडी. डोंट चेज रिटर्न्स, नहीं होने वाला है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं आने दो, क्योंकि नए लोग भी आ रहे हैं, नया मार्केट है, दे आर एक्सप्लोरिंग एंड ऑल दैट. बट हम कुछ स्कीम्स के साथ रहो, रिव्यू इट, अगर नहीं अच्छा करते तो ही चेंज करो, अदरवाइज जस्ट स्टिक टू इट. मेरा फिलॉसफी है, मैं डेट इक्विटी एलोकेशन ज्यादा करता हूँ कि थोड़ा रिग्रेट बचाने के लिए. तो फ्रॉम दैट एंगल दैट्स इट. अदरवाइज जस्ट स्टिक टू सम 8-9 गुड फंड्स एंड दैट्स इट. Okay, thank you very much. Yeah, and one question from Kanan. Kanan, you have a question, I understand. या हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, कपिल सर, प्रशांत सर, थैंक यू सर. ये सेशन किसी और के लिए हेल्प है पता नहीं, बट मेरे लिए बहुत यूजफुल है सर. एक्चुअली 2018 में मैंने स्टार्टेड किया था ऐसे ही रेफरेंस के थ्रू. सर टाटा AIG का मैंने लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान मैंने लिया था 2018 पे. उसके बाद जो 2020 में जो कोविड इफेक्ट हुआ था, तो उस टाइम में मेरा वैल्यू बहुत कम हो गए. सो आई बीन टू पैनिक. तो मैंने मेरा पोर्टफोलियो था वो 50% कम हो गए थे, तो मैंने उसे ऑफ कर दिया, स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैंने प्लान किया तो कि इसमें हमारा बेनिफिट नहीं है. तो उसके बाद उसी टाइम पे हमारा क्रिप्टो करेंसी वगैरह पे ज़्यादा वो हो रहा था हाइप, तो मेरे को तो उतना ध्यान नहीं था. चलो इसमें पोर्टफोलियो ज़्यादा हो रहा है, तो आई बी स्टार्टेड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, और मैंने उसे स्टॉप कर दिया. अभी क्रिप्टो करेंसी डाउन जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो आई बी कंफ्यूजन. और मेरे को ये भी है. कन्नन, तुम्हारी एज क्या है फिर से? नाउ 30 सर. 30. अच्छा देखो, क्रिप्टो करेंसी जो है ना, दो चीजें बोलना चाहता हूँ. एक तो टाटा AIA जो ये अगेन इंश्योरेंस वाला सबकी प्रॉब्लम है लाइफ में, तो वो तो आपको पेड अप करके सरेंडर कर देना चाहिए 5 साल बाद. तो यू डू दैट. आगे लाइफ में मत करना, जल्दी सीख गए, बच गए. अभी लॉकिंग पीरियड है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा. और वो मुझे ये सजेशन करे सर, इसे आप वापस प्लान स्टार्ट कर लो, कंटिन्यू कर लो, या 5 ईयर तक. जी मैं 2 मिनट लूंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में. 2 मिनट. देखो, क्रिप्टो करेंसी का अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. हम सबकी जिंदगी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अफेक्ट करने वाली है. आपकी कंपनी को भी अफेक्ट करेगी, मेरी कंपनी को अफेक्ट करेगी, पूरे इंडस्ट्री हिलाने वाली है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. बट क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये करेंसी है, ठीक है. करेंसी से हम असेट खरीदते हैं, करेंसी की कोई कीमत होना नहीं चाहिए टेक्निकली. बट चूंकि आज क्रिप्टो करेंसी का ज्यादा यूजेज नहीं है, इसलिए उसको प्लीज डोंट गेट सक्ड इनटू दिस. ओके, इट्स नॉट एन असेट लाइक गोल्ड और स्टॉक जो हम खरीद के रखते हैं. तो क्रिप्टो करेंसी प्लीज ट्रेड मत करो. आपका तब तक आपका 3 टाइम CTC नहीं पहुंचता है. मैंने क्या समझाया, राहुल द्रविड़ को पहले टीम में लाओ, डायरेक्ट धोनी के पीछे मत भागो, नहीं तो कामली हाथ में आ जाएगा. सर अभी सर वही सजेशन है सर. अभी जो मेरा टाटा AIG है, अभी मैंने स्टॉप कर रखी है, उसे कंटिन्यू करूं या मेरा जो नेक्स्ट और 2 ईयर्स के बाद क्लोज कर दूं? हमारा साथ नहीं दिया, हम उसका साथ नहीं देंगे. सिंपल. 5 साल बाद जब वो सरेंडर की कीमत आएगी, जो भी कीमत होगी निकल जाना लेके, खत्म बात. रात गई बात गई. ओके सर, थैंक यू सर. Right, thank you, Kanan.
I think we have also overshooted our time. Kapil's time was only 1 hour, and then he charges very heavily on that. Yeah, I'm okay. We can So, take 5 minutes. but we can still take one more question. Prashant, I had one question. Simple question था. I have one simple question. Sir, इसमें क्या रहता है ना? Sometimes we invest. Sometimes we always feel ना कि हम लोग उसका profit एक करके भी sometimes we have to exit, and then sometimes we have to reinvest in some other portfolios and all these things. Who's asking this question? Profit book का. He's Ajinkya. He's Yeah, this is Ajinkya from Ajinkya. Bombay. Yeah. अजिंक्य, हाय, दिस इज अ फैब क्वेश्चन एक्चुअली. ये सबकी तकलीफ है यार. ये सही बोल रहे हो आप. सब पेपर में देखते हो इन्वेस्ट करें क्या. तो देखो, दो तरीके से हमको एग्जिट करना चाहिए. ठीक है. अभी जैसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, लाइक वी हैव मोर देन 5000 टैक्स क्लाइंट्स एंड ऑल, इन्वेस्टर्स भी इतने सारे एंड ऑल. सबकी यही कॉमन प्रॉब्लम है कि कभी भी है. तो दो तरीके से हमको एग्जिट करना चाहिए. जब हमारी नीड अराइज हो रही है, आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट शुरू किया था रिटायरमेंट के लिए, और सडनली आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई कोविड के लिए, तो आप क्या करोगे? तो यू नीड टू टेक मार्केट पोजीशन. क्या है? अगर प्रॉफिट है तो ले लो, अगर नहीं है, मार्केट क्रैश में है तो डेट से निकालो एंड ऑल दैट. अगर कोई भी नीड नहीं है, मान लो जैसे आज की तारीख में आपका अच्छा प्रॉफिट बैठा हुआ है और बढ़िया इन्वेस्टमेंट चल रहा है, मगर आपको एक डर है, खौफ है कि यार साला कहीं मेरा जो 20-25 लाख का गेन है या ये 40% का गेन है चला नहीं जाए, यार मैं क्या करूं, राइट? ये एक डर है. डर को हटाने के लिए थोड़ा 20% आपको रीबैलेंस करना ही चाहिए नॉर्मल इन्वेस्टर्स को. तो जैसे भैया कोई भी नीड नहीं है, तो मैं लोगों को क्या बोलता हूँ कि आपका 100 रुपए का 100-150 रुपए हो गया है, मान लो 1 लाख का 1.5 लाख हो गया है, या मान लो 50 लाख का 75 लाख हो गया है, राइट? तो मैं लोगों को बोलता हूँ उसको बैलेंस कर लो, 15 लाख लेके डेट फंड में डाल दो. इससे क्या होगा? क्या हम टाइमिंग कर रहे हैं? नहीं. क्या हम जानते हैं मार्केट गिरने वाला है? ऑब्वियसली नहीं. क्या हमको पता है मार्केट ऐसे डबल होने वाला? पता नहीं यार. हम सिर्फ एक चीज कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में मार्केट कुछ भी करे, हमको दर्द नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मार्केट गिर गया तो हमने तो एटलीस्ट 20% ऊपर बेचा था, अगर बढ़ गया तो हमारा 80% तो रखा है. ये डर और ये जो फियर और ग्रीड को हटाने के लिए रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी है, और रीबैलेंसिंग की वजह से आप लॉन्ग टर्म बने रहते हो. और अल्टीमेटली रूल ऑफ द गेम इज कॉर्पस, नॉट रिटर्न्स. ओके, हार इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉर्पस इंपॉर्टेंट है. सो चेज अ कॉर्पस, डोंट चेज रिटर्न्स. लोग रिटर्न्स चेज करते हैं, जो चेज अ बिग कॉर्पस, एंड उसके लिए रीबैलेंसिंग करना जरूरी है. और I think then we are over with this session. Thank you, Kapil, and I now request Uday sir for a closing remark, and then we can all break for today. Yeah, so I mean, very interesting session, and I'm sure that all our colleagues definitely got a very good insight, and thanks a lot to Kapil. And I am always excited to listen to Kapil whenever he invites for a webinar. Recently, I attended one which was Retire Rich by Kapil and I think Mr. Subramaniam, who wrote a book, Retire Rich. So I was thinking it is only for people more than 50 years like me, more than 55 years like me. So, but it was not that. It was that book says that save 40 rupees a day, right, Kapil? Correct. There's something catch in that book, and I didn't read that book, but that gave me one idea that we should suggest all our younger generation to start doing something. That is my personal suggestion to all. Ki what mistake we did maybe in our earlier life with our say incentives or sometime bonus, etc., which we could have parked those days, but we didn't have knowledge. Neither we had nice mentors like Kapil and team to guide. And as I said, I got associated with Kapil since 2019 January. I see my sheet once in a month, and really glad. So it's a good suggestion always. And thanks Kapil once again. Thank you and so much for having me. Yeah, thank you, Prashant ji. Thank you, Uday ji, for